चैनल। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ब्यूटी प्रोडक्ट फेस। मोस्टली ये सब मेकअप एंड स्किन केयर ही है, एंड ओवर द period of time I've used a lot of new products and some work for me, some did not work for me. I hope you guys enjoy watching this video and let's get started. First of all, I'm really sorry for not posting this week. I posted an update on the community tab, so in case you want to check out तो आप वो देख सकते हो. But I'm sorry for just disappearing like that. I've not been feeling the best. But before I get into the products, I want to give a disclaimer. I just want to say that these products simply did not work for me and I don't like it. अगर आपको इनमें से कोई भी product पसंद है, that's totally cool. I feel like everyone has a different experience with products. I talk a lot about products that I like, so yeah, it's okay to talk about products that did not work for me. Alright, first things first, let's talk about makeup. So I tested out some new products and some old products also जो अब new packaging वगैरह में आ गए हैं. The first one is the Maybelline Sensational Liquid Matte. This is what it looks like. So this is in the shade Barely Nude. And जब मैंने ये खरीदा था ना, I was expecting it to be a normal like nude color, but this just turned out to be a grayish nude. This is the shade. So this completely washes me out and it's a little bit patchy on my lips. Like ये बाकी की shades की तरह ना उतना smooth नहीं है and it doesn't look nice on me at all. Like this is too grey. Other than that, I do really enjoy their Sensational Matte Liquid Lipsticks. I have so many of them. I just don't like this color. Alright you guys, I actually did not know that Maybelline Fit Me का compact is in a new packaging. Like मैंने ये नायका के सेल पे देखा था and I was like what? Because I had that old square shape वाला packaging only and I've used that. I loved it. मैंने ना अभी actually Maybelline का फाउंडेशन मंगवाया Super Stay वाला and I got it in the shade Warm Nude and वो same shade मेरा Fit Me में भी था पहले. So वो ठीक है. तो मैंने सोचा कॉम्पैक्ट में भी ना मैं वही शेड मंगवाती हूँ Warm Nude, बिकॉज अगर आप कॉम्पैक्ट एंड अपने फाउंडेशंस का शेड सेम नेम रखोगे सो आई वाज लाइक कि वो फिर सेम शेड ही होगा ना. But dude, I got this compact in Warm Nude and this is so dark. Like this is super dark on me. I'm really sorry, ये मेरे हाथ पे अच्छा सा swatch नहीं हो रहा. Like you can't see it on camera. I'll show it to you on the sponge. Foundation का Warm Nude is almost a perfect match for my skin tone, but then for the compact it is so dark. And this is one of the reasons that these days I don't like buying complexion products online, because ये shade में ना बहुत ऐसे फर्क हो जाता है and then yeah, you just end up wasting this. Like I can't even use this as contour because this is not like a proper contour shade also. So I want to try a really nice compact and let me know कोई अगर आपके अच्छे recommendations है and shade भी like जो ऑनलाइन अच्छा मुझे मिल जाए. टॉकिंग अबाउट कॉम्पैक्ट, सो आई हैव द बायोटिक मैजिक कॉम्पैक्ट. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है. लाइक आई रियली एंजॉय द फॉर्मूला. बिगेस्ट कंसर्न विद दिस इज द फ्रेग्रेंस. दिस इज सेंटेड, लाइक दिस इज सेंटेड लाइक एनीथिंग. मैं अभी स्मेल भी नहीं करूँगी इसको बिकॉज दिस इंस्टेंटली ट्रिगर्स माई माइग्रेन. लाइक द स्मेल इज सो जारिंग एंड आई वॉज जस्ट लाइक कि वाई इज इट सो सेंटेड. लाइक इसको खोलते ही ना मेरा पूरा रूम स्मेल्स लाइक दिस सोप. यू गाइस नो मुझे फ्रेग्रेंस एंड सेंट से इतनी प्रॉब्लम नहीं है. यूजुअली मुझे अच्छा ही लगता है बट लाइक एक हद होती है ना. मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि आप उसको बिल्कुल परफ्यूम बना लो, बिकॉज दिस इज एट द एंड ऑफ द डे अ पाउडर फॉर योर फेस यार. मतलब इट्स नॉट इवन फॉर योर बॉडी. हाउएवर अगर आपका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, यू डोंट माइंड एक्सट्रीमली फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट्स, आई रियली लाइक द फॉर्मूला. लाइक इसका फॉर्मूला सही में अच्छा है. आई जस्ट विश इसमें इतना फ्रेग्रेंस नहीं होता. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, आई कांट इवन बिलीव आई एम शोइंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज so hyped. Everyone loves it जो भी इसको यूज करता है. and I was so utterly devastated that this did not work for me, and that is the Estee Lauder Double Wear Foundation. I have the Chotu version, but when I used this, you guys, I was so disappointed. This separates on my face. It looks so patchy. A lot of people who have acne marks and oily skin like me, they love this because this is like medium to full coverage. So I was like this is going to be perfect for me. But the moment I use this, no matter what primer I use, what setting powder I use, मतलब मैंने सब कुछ करके देखी है, this simply does not want to work on me. Every time I use this, be it with a brush, be it with a beauty blender, वो बिल्कुल ऐसे सेपरेट हो जाता है. इतना पैची लगता है. लाइक आई हैव हैड टू एक्चुअली रिमूव माई बेस एंड डू इट अगेन.
सो आई जस्ट डोंट नो हाउ टू वर्क विद दिस. मे बी मैं कुछ गलत कर रही हूँ. सो इफ यू हैव यूज दिस एंड यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ कि आप कौन से बेस प्रोडक्ट्स यूज करते हो. लाइक व्हाट डू यू डू टू प्रेप योर स्किन. सो आई वुड रियली लाइक टू नो कि इसके साथ मैं क्या लगाऊं so that it works on me, because I really wanted to work on me because everyone loves it. I want to love it too. The next product जो मैं try कर करके थक गई हूँ and now I have just made up my mind about this. I think ये मेरे पिछले वीडियो में भी था, products I regret buying या something of that sort वीडियो में, but I'm gonna again talk about this because I gave it more chances. I did not want to give up on it, and that is the ELF Putty Primer. This is what it looks like. And yeah, you guys can see I have made quite a dent here. मैंने इसको बहुत यूज़ किया है and it's actually meant for people who have large pores, who have texture issues and who have oily skin. I'm gonna insert a picture right here जब मैंने इसको यूज़ किया था, and you will see how oily it made me within 2 hours. Like literally I was leaking. The only different product that I used was this. This doesn't even do anything for your pores. This is simply a moisturizer, like nothing else. It's a very nice hydrating moisturizer and I don't even know why it is marketed for like pores and everything, क्योंकि ये आपके pores को नहीं blur करता है, ये आपके texture को नहीं smooth करता है. And if you have oily skin, this will make you more oily and आपका makeup नहीं टिकेगा आपके face में. तो मेरा तो experience इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था. So yeah, I would not recommend this. Alright, the next product that I want to talk about is an eyeshadow palette, and this is the eyeshadow palette. It is by LA Colors. Yeah, LA Colors. इसका ओरिजिनल प्राइस 525 या 550 है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड ये आई थिंक मैंने किसी चैलेंज वीडियो के लिए खरीदा था, तब ये मुझे सेल पे मिला था. इट हैज नो पिगमेंट, एज सिंपल एज दैट. लाइक यू गाइज, आई एम रियली गोइंग हार्ड. ओके, एंड oh my god like मैं मजाक नहीं कर रही है, सीरियसली इसका कोई कलर पे ऑफ ही नहीं है. इसमें शिमर शेड्स है which are a little better. Here you go, but I wouldn't say they are shimmer shades. This is basically a useless palette. Like I don't think you can do anything with this. The next product that I have for you is actually by Plum, and that is the Vanilla Vibes Body Scrub. Now you guys must be very surprised to see Plum, and I just want to clear one thing that I have nothing against any of these brands. I have tried a lot of different products from these brands जो मुझे बहुत पसंद है, but again some products are hits and misses, and this scrub is one of them. So you guys can see I have used a lot of it and I'm still using this. The only drawback of this product is कि this is too buttery. Like इसका जो वो scrubbing particle है ना, वो बिल्कुल negligible है. It's almost like a body butter. लाइक ये ना आपके बॉडी में बिल्कुल ऐसे मेल्ट हो जाएगा. एंड आई जस्ट पर्सनली लाइक थोड़ा इंटेंस बॉडी स्क्रब. द प्लस साइड टू दिस इज कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है एंड इफ यू हैव सुपर ड्राई स्किन, यू विल रियली लाइक इट बिकॉज दिस डज नॉट ड्राई योर स्किन, बल्कि मॉइस्चराइज ही कर देगा आपकी स्किन को. एंड प्लम का जो दूसरा बॉडी स्क्रब है, आई थिंक इनका एक और चेरी वेरियंट है या कुछ है, आई रियली लाइक दैट. उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, बट या लाइक आई सेड, इफ यू हैव ड्राई स्किन और इफ यू हैव सुपर सेंसिटिव स्किन, देन यू विल एंजॉय दिस. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ सीरम, एंड दिस इज बाय Minimalist, and this is the alpha arbutin 2% plus hyaluronic acid 1% serum. Now I started using this as a treatment almost 3 months ago. So मैंने इसको बहुत अच्छा एक ट्रायल पीरियड दिया है ना. मैंने ना बहुत रिसर्च की थी बिफोर बाइंग एनी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट. बेसिकली अल्फा आर्ब्यूटिन हेल्प्स टू लाइटन योर वेरी डार्क स्पॉट्स. सो मुझे बहुत सिवियर एक्ने स्कारिंग है एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्वेयर बाय दिस, लाइक दे हैव सीन गुड रिजल्ट्स. नाउ अल्फा आर्ब्यूटिन यू आर सपोज टू यूज फॉर 2 या 3 मंथ्स मैक्स. उससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है, हर किसी ने यही बोला था. सो आई यूज दिस फॉर लाइक 2.5 मंथ्स एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया. मैंने इसको मई में यूज़ करना शुरू किया था एंड आई use this diligently, you guys. Like I use this every single day and I saw almost no result. Like my acne scars were literally the same. मुझे अल्फा आर्ब्यूटिन से बेटर रिजल्ट विटामिन सी से मिला है. लाइक विटामिन सी के जो मैं सिरम्स यूज करी थी, मुझे उससे बेटर रिजल्ट मिला है देन अल्फा आर्ब्यूटिन. एंड आई वाज जस्ट सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई सॉ लॉट ऑफ पीपल हु हैड एक्ने प्रोन स्किन एंड उनके एक्ने मार्क्स थे, एंड अल्फा आर्ब्यूटिन से विद टाइम उनके इतने लाइट हो गए थे. एंड आई वाज रियली होपफुल कि मेरा भी सेम रिजल्ट होगा, बट नहीं हुआ एंड मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई बिकॉज आई गेव इट लाइक अ गुड ट्राई. सो या अल्फा आर्ब्यूटिन इज डेफिनेटली अ हिट और मिस, एंड सो इज लाइक मोस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. आई थिंक बहुत मुश्किल है बताना कि कौन सा आपके क्रॉनिक
स्कारिंग एंड इन सब चीज़ों के लिए वर्क करेगा. आई एक्चुअली रियली लाइक द सैलिसिलिक एसिड सिरम एंड ऑल्सो देयर पील ऑफ मास्क, वो भी मुझे अच्छा लगा. आई एम स्टिल ट्राइंग बोथ ऑफ देम आउट बट सो फार आई लाइक इट. आई विल गिव यू गाइज अ कंप्लीट रिव्यू या कुछ आगे किसी वीडियो में. अनदर प्रोडक्ट दैट आई हैव फॉर यू इज अ ब्लेमिश क्रीम एंड दिस इज बाय COSRX. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एंड अंदर से ये कुछ ऐसा लगता है. सो बेसिकली दिस इज अगेन फॉर योर ब्लेमिशेज एंड इट इज मेंट टू लाइटन देम. ना लिटरली डू नॉट सी एनी डिफरेंस. लाइक मैंने आई थिंक पहले भी बोला था ये अपने किसी रिव्यू में कि मुझे इससे ना कोई डिफरेंस नहीं दिखता है. व्हेन यू अप्लाई इट ना, इट गिव्स यू एन इमीडिएट इल्यूजन दैट योर स्कार्स एंड जो ब्लेमिशेज है वो थोड़े लाइट हो गए, बट दैट्स बिकॉज दिस लीव्स अ वाइट कास्ट ऑन योर फेस. इसको भी मैंने बहुत यूज़ किया एक्चुअली एंड मुझे इससे कोई भी रिजल्ट्स नहीं दिखे एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस वाज आल्सो एक्सपेंसिव. नाउ लेट मी नो इफ यू गाइस हैव ट्राइड दिस एंड इट वर्क फॉर यू. मे बी इट वर्क्स ऑन लाइक लाइट स्कारिंग एंड स्टफ लाइक दैट. मेरी तो बहुत ही स्टबर्न स्कारिंग है, सो मे बी उसके ऊपर ना काम करता हो. सो alright, the next product I have for you is by Mamaearth and this is the Rice Water Wonder Detangled Hair. ये एक स्प्रे है बेसिकली. ओके, बिफोर आई टेल यू गाइज व्हाट आई डोंट लाइक, आई वांट टू टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट. ये अच्छा प्रोडक्ट है. इसको स्प्रे करना है एंड देन यू हैव टू लीव इट फॉर लाइक 5 to 7 seconds एंड देन ब्रश. सो इट वर्क्स लाइक इट डिटेंगल्स योर हेयर्स एंड इट डज व्हाट इट क्लेम्स टू डू. बट द थिंग इज द स्मेल ऑफ दिस, अगेन इट हैज सच अ स्ट्रॉन्ग सेंट. लाइक oh my god, like this has a very strong floral scent and personally I don't like floral scents. Like the scent is so strong and इसका जो fragrance है ना वो आपके बालों में रह जाता है. That is something that I hate even more. एक बात है कि आप लगा लो and उसके बाद ना smell dissipate हो जाएगा, but एक होता है कि it stays in your hair and hair तो ऐसा है ना कि खुला रहता है and you guys have seen my hair is always falling on my face, so I just simply cannot stand the fragrance. Alright, the next thing that I got and I regret, like extreme regret, is this Tangle Teaser. Wow, Tangle Teaser hair brush. I'm sorry, इसमें ना थोड़े से मेरे hair है वो निकल नहीं रहे थे, but yeah, this is what it looks like. The color and everything is very cute and you are supposed to use it on your wet hair and it is supposed to help you with your hair breakage. I have seen no result कि हाँ मैंने अगर इसको यूज़ किया वर्सेस में नॉर्मल हेयर ब्रश तो कोई डिफरेंस होगा. ना कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में बराबर बाल गिरते हैं. एंड द अदर थिंग इज आई फील लाइक दिस इज टू हार्श ऑन माई स्कैल्प एंड अब मेरा स्कैल्प काफ़ी हद तक हील हो चुका है एंड इवन नाउ आई जस्ट फील लाइक इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल. इसके मैंने सिर्फ अच्छे रिव्यूज सुने थे, सो दैट इज वाई आई गॉट इट, बट या आई डिड नॉट लाइक इट. द लास्ट प्रोडक्ट आई हैव फॉर यू इज अ स्ट्रेटनर एंड दिस इज बाय वेगा. ये मैंने बहुत अरसों पहले खरीदा था, एक्चुअली लास्ट ईयर खरीदा था. दिस इज अ स्ट्रेटनर, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एंड दिस वॉज चीप. आई थिंक ये 1000 रुपीज़ का या कुछ था एंड मैंने ये अमेजोन से खरीदा था. एंड द थिंग इज कि दिस स्ट्रेटनर इज नॉट गुड. नॉट ओनली योर हेयर इज स्ट्रेटन फॉर लाइक लेट्स से 1 to 2 hours मैक्स एंड देन थोड़ी सी भी ह्यूमिडिटी होगी आपके बाल खुल जाएंगे एंड इससे ना मेरे बाल बहुत खिंचते हैं. इसका ये जो प्लेट है ना, इट्स नॉट वाइड इनफ एंड इवन इफ लाइक आई टेक पतला स्ट्रैंड और उससे भी मैं करूँ, इट लिटरली पुल्स ऑन माई हेयर. इसके सिरेमिक प्लेट्स है बट आई डोंट थिंक इट डिड एनीथिंग. आई थिंक इट डिड फ्राई माई हेयर अलॉट. इफ यू गाइज हैव मोर recommendations for straighteners, let me know. I am always looking for them. And yeah, that is about it. Those are all the products that did not work for me. I love watching these videos because मैं खुद इतना शॉप करती हूँ स्पेशली मेकअप एंड स्किन केयर के लिए. सो मुझे जानना पसंद है कि लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस थे. सो मेरा भी वही purpose है and I hope you guys enjoyed watching this video. Don't forget to subscribe before you leave and I'll see you guys in my next one. Bye bye. Hey. क्या हो रहा है? And I think मैं बोलते बोलते से आवाज ही जा रही है. I'm so sorry. भात डालता फ्राइड राइस का. फ्राइड राइस पता नहीं चल रहा है कि मैंने येलो पहन रखा है, वाइट ही लग रहा है. 3, 2, 1 okay.